Assalamu alaikum, hello and welcome back to the channel. Dear 10th class students, hope you all are doing good. And in this particular video, we'll be going to discuss the human nervous system. In the earlier videos, we discussed about the nervous system in general, and this is the third lecture of the control and coordination. In the earlier videos, we discussed the neuron, types of neuron, and in-text questions as well. Dear students, if you are new to the channel, please subscribe the channel. Without wasting our much time, let us start the human nervous system or the nervous system in humans. Dear students, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, human nervous system has been divided into two main regions or the two main different types, that is the CNS, central nervous system, and peripheral nervous system. अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, इसमें हमारे पास दो, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. याद रखो डियर स्टूडेंट्स, दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. देन वी हैव द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट consists of the nerves. ठीक है, so we have the brain and spinal cord in the central nervous system and the nerves in the peripheral nervous system. अगर हम nerves की बात करेंगे, we have two types of nerves. Dear students, we have two types of nerves. One is the cranial nerves and second is the spinal nerves. Dear students, if we talk about the cranial nerves, these arise from the brain. That's why they are called as cranial nerves. While the nerves originating from the spinal cord are called as spinal nerves. This is the main difference, or the difference between the cranial nerve and the spinal nerve is that cranial nerves arise from the brain and the spinal nerves arise from the spinal cord. Dear students, please remember one thing here. In human body, we have 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. Let's move on to the another important type, that is the somatic nervous system, and another nervous system, that is the autonomous nervous system. Another type of this nervous system, it is differences. That's why we have to study this somatic nervous system and the autonomic nervous system. In nutshell, अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, हम कहेंगे जितने भी वॉलंटरी एक्शंस है जो हम खुद कर सकते हैं, दैट आर अंडर आवर विल, सो वो जो काम है वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम करेगा. इतना आपको याद रखना है. दिस विल बिल्ड योर कॉन्सेप्ट. डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, हम कहेंगे this somatic nervous system is responsible for our voluntary actions, voluntary responses. ठीक है, let us see this image. This is our brain and this is the part of the CN, central nervous system, and this is the spinal cord. This is also the part of our central nervous system. When we talk about the nerves, these are the peripheral nervous system, and this ganglia that are also in this very particular peripheral nervous system. Then we have another important thing, that is the ENS. What is this ENS? We have to study this
to build your concept for the higher classes. ENS का मतलब होता है enteric nervous system and this is responsible for controlling the smooth muscles जो आपके पास होते हैं and glandular tissues in your digestive system. It is the large part of the peripheral nervous system and is not dependent on the central nervous system. ठीक है, सो ये किसका पार्ट है? ये जो एंटरिक नर्वस सिस्टम है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये आपको याद रखना है. इट इज समटाइम्स वेल्ड हाउएवर टू कंसिडर द एंटरिक system to be the part of autonomic system because the neural structures that make up the enteric system are a component of autonomic output that regulates digestion. इसका ये मतलब है कि कभी कभार हम ये भी कह सकते हैं कि दिस एंटेरिक नर्वस सिस्टम इट इज़ द पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बिकॉज अगर डाइजेशन होती है दैट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सो कभी कभार हम ये भी कह सकते हैं दिस विल कंक्लूड योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड देन दिस enteric nervous system. Now we have to one of the main important topic that is the reflex. Dear students, अगर आपका reflex action बिल्कुल समझ में आपको ये आ गया, दैट मीन्स कि आपने एक अच्छा क्वेश्चन लर्न किया. ठीक है, सो वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपको समझ में आ जाए. सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे, देन वी विल मूव ऑन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट इन वॉलेंट्री ऑर्गन्स. ठीक है, सो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है ये, दैट इज not under the control of our will. So when we talk about the reflex action, we have a simple and important example, that is जब भी हम किसी आयरन हॉट रॉड को टच करेंगे, हम इमीडिएटली अपने हाथ को उससे उठाएंगे. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. अगर आपको कोई नीडल से प्रिक करेगा तो आप अपना हाथ या जो भी जिस पर वो प्रिक करेगा बहुत ही जल्दी उठाओगे. दैट इज़ द इनवॉलेंट्री काइंड ऑफ द मूवमेंट. यहाँ पर मैं आपको इसका जो डायग्राम है वो समझाऊंगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हॉट बर्तन है. ठीक है, सो हमारी बॉडी में होते हैं रिसेप्टर्स जो इस हॉटनेस को हमें महसूस करवाते हैं. ठीक है, सो वी हैव द रिसेप्टर्स इन स्किन. इसको ये जो रिसेप्टर्स है ये इसको महसूस करेंगे एंड इसी मैसेज को जो इन्होंने मैसेज वहाँ पर पाए रिसेप्टर्स ने, इसको ट्रेवल करवाएंगे, ट्रांसफ़र करवाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस सेंसरी न्यूरॉन एज डिस्कस्ड. तो ये पहुँचाएगा इस मैसेज को टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट को. ठीक है, दैट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड ये कहाँ तक पहुँचाएगा? टू द ब्रेन. अब यहाँ पर जो भी वहाँ पर रिस्पांस होगा, आपको हाथ को उठाना है या हाथ को वहीं पर रखना है, डिपेंड्स ऑन कि आपका जो ब्रेन है वो क्या रीड कर पाएगा. ये so we can define the reflex action as it is the automatic response to the stimuli, automatic response to the stimuli, or which is not under the control of will. ठीक है, या simplest form of response in the nervous system is called a reflex action. अगर हम इसके example लेंगे, so if we consider the example, we can say if we step accidentally on sharp or pointed object, we move our foot away from the object is an example of reflex action. ऐसा भी आप लिख सकते हो आपके एग्जाम में. Now we have the reflex arc. रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये होता है कि ये एक रिफ्लेक्स एक्शन अगर होगी, ये कौन सा पाथ वे यूज करेगी. ठीक है, द पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल्स
involved in the reflex action trouble is called a reflex action. For example, अगर यहाँ से रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन मदद करता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड, ये एक पाथ है ना, इस पाथ को हमें पढ़ना है. सो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको इजी से समझ में आ जाएगा. इफ़ सबसे पहले इफ़ वी हैव द स्टीमुलाई, ठीक है, स्टीमुलाई के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स होने चाहिए जो इस चेंज को ये देखेंगे कि व्हाट चेंज वी हैव टू डू, वहाँ से क्या चेंज हुआ है. रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट द चेंज, ठीक है. अगर आपको रिसेप्टर का नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा रिसेप्टर क्या होता है. रिसेप्टर हम कहेंगे इट इज़ द सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स. सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स वो क्या करेंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स वो डिटेक्ट करेंगी, क्या करेंगी, डिटेक्ट करेंगी क्या, चेंज को, ठीक है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टीमुलाई को. क्या सर, क्या मतलब है इसका. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लाइट होगी तो लाइट को कौन डिटेक्ट करेगा, वी हैव फोटो रिसेप्टर्स फॉर लाइट. इसी तरीके से अगर हमारे पास साउंड होगा, साउंड को कौन डिटेक्ट करेगा कि ये कौन सा साउंड है, वी हैव फोनो रिसेप्टर्स. वी हैव ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो स्मेल को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है. सो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं स्टीमुलाई को, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. तो इसको कौन आगे पहुंचाएगा, इस मैसेज को आगे पहुंचाएंगे सेंसरी न्यूरॉन्स. इस मैसेज को आगे पहुंचाएंगे सेंसरी न्यूरॉन. सबसे पहले स्टीमुलाई, देन वी हैव द रिसेप्टर्स, देन सेंसरी न्यूरॉन, देन सेंसरी न्यूरॉन. अब यहाँ पर इंटर न्यूरॉन है जो इस ये जो मैसेज हमें आई है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाएगी. कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में. अब स्पाइनल कॉर्ड में हमें क्या होगा, वहाँ पर जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें अब इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको क्या रिएक्ट करना है. अगर वहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट है, क्या आपको अपना हैंड उठाना है या नहीं उठाना है, ठीक है. सो वहाँ से जो इंफॉर्मेशन होगी वो मोटर न्यूरॉन ट्रांसफर करेगा. सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, द मेन फंक्शन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन इज it transmits the message from the receptor towards the central nervous system, and the main function of this motor neuron is it transmits the impulse from the central nervous system towards the effector or towards the muscle cells, that is the effector here. अब response क्या होगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है किस पर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर. दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क माय डियर स्टूडेंट्स. होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. नाउ वी हैव द important thing that will also build your concept. What is that, muscular movements किसकी वजह से होते हैं. we have two important filaments or the two important proteins, that is the actin and the myosin, that help in the muscular movements. खाली आपको ये दो याद रखना है. एंड important चीज़ आपको ये याद रखनी है कि कैल्शियम इसमें मदद करता है, ठीक है. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. वी completed the reflex action, reflex arc and the nervous system, human nervous system. Hope you liked the video.